This was the question given. Are you there? Yes, sir. What is the answer Yes, of this sir. question one? What is the answer of this question? All three devices are having same potential difference. और applied भी same है क्या? Okay. Applied we don't know. Connected to AC voltage across and in LCR series circuit connected to AC voltage across all the three element is 10 voltage. What will be the phase difference between current and voltage? What is the answer? Phase difference will be 0. Why 0? It will be the case of resonance. How can we Impedance will be say? equal to resistor. How will be the case of resonance? Cos phi will be 1, so phi will be allowed. क्या होगा देखो C and L and C के क्रॉस अगर 10 वोल्ट है, since V XL is equal to XC, therefore VL is equal to VC. तो दोनों के क्रॉस इक्वल है वोल्टेज, तो इट इज द केस ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस में फेज डिफरेंस इज 0, पावर फैक्टर इज 1 है ना, फेज डिफरेंस पूछा है ना. सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इफ कैपेसिटर इज रिमूव. कैपेसिटर रिमूव हो गया है, now इंडक्टर एंड रजिस्टर्स आर लेफ्ट. तो इसमें से हमें ये भी पता लगा कि अप्लाइड वोल्टेज भी 10 होगा, बिकॉज इफ इट इज द केस ऑफ फेज रेजोनेंस, तो जितना अप्लाइड वोल्टेज होता है उतना ही that much is the voltage across resistor. Now capacitor is removed, applied voltage will remain same, that is not being disturbed. What is the voltage across inductor? बोलिए क्या आंसर होगा? रजिस्टर, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज चाहिए. 10 volt. No, 10 volt is not the right answer. अभी तो रेजोनेंस नहीं है ना, it is out of resonance now. Voltage will change. Getting or not this point? Voltage will change now because it is no more. रेजोनेंस के लिए तीनों होना चाहिए, LCR होना चाहिए. C is missing now. It is no longer can be at resonance. But one thing is sure कि resistance will XL will be equal to, यहाँ से 10 वोल्ट है ना, तो करंट जो था, करंट वाज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन. करंट सेम है तो तीनों का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा. फर्स्ट केस से आल्सो यहाँ से हमें पता लगा, आल्सो XL will be equal to XC will be equal to R. ये भी इक्वल होगा तभी तो वोल्टेज थे, तीनों में 10 वोल्ट है ना. Since V is equal, तो अभी भी XL will be equal to R. इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. यहाँ पे X, यहाँ पे X. पोटेंशियल लेट पोटेंशियल डिफरेंस इज X. फार्मूला क्या होगा? V is equal to under root of VR square plus XL, sorry, VL square. अप्लाइड 10 है, ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर. 10 इज इक्वल टू एक्स रूट 2, तो एक्स इज इक्वल टू 10 by root 2. 5 Therefore, हाँ 5 root 2 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं.
What is X? X is the potential difference across each. पूछा कौन सा है? Resistor. तो V, therefore VR is equal to 5√2 लिख दो या फिर वही लिख दो. As it is लिख दो, doesn't matter. See the option. Clear? So this is not only case of resonance, but one step further, better question. Logics, proper logical conclusions. All right. बोलिए इसमें डाउट है कुछ? फर्स्ट केस से रेजोनेंस पता लगा और उसी से ये भी पता लगा कि रेजिस्टेंस विल बी इक्वल, तभी तो वोल्टेज विल बी इक्वल. सभी में सीरीज में करंट सेम रहता है. ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस विल बी इक्वल. इनको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, रिएक्टेंस बोलेंगे ना. दे विल बी इक्वल टू आर. देन Yes, sir. ओके, तो quality factor we were doing, sharpness also called sharpness of resonance. तो इसका हमने इसका भी एक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें. इसकी नोवेटी ये था, देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है. here you have to find the resonant frequency 1/√√ of LC. वैल्यू पुट कर दो. L is 2, C कितने 32 into 10⁻⁻6. if you simplify, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 125 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड. एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज द क्यू फैक्टर. इसको भी वैल्यू पुट कर दो. 1/r इज इन फैक्ट 10 और बाकी क्या है इसमें √L, दैट्स 2/32. तो इसको सिंप्लीफाई करो 25. यूनिट क्या लिखेंगे इसकी क्यू फैक्टर की? नो यूनिट, No, you. यूनिटलेस. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Now, Q factor in the NCERT book is derived with the different method. You can follow that also. Let's see what is that, how it is defined there in NCERT book. Q factor also called sharpness at resonance. Actual में इसको कैसे define किया NCERT book में? It is the ratio of angular frequency at resonance and other one is bandwidth. ये दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस. अब ये दो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? इसको बैंडविड्थ बोलते हैं. ये दो फ्रीक्वेंसी कौन सी होंगी? जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट इज आरएमएस करंट, पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स है. तो उन दो फ्रीक्वेंसी के बीच को बैंडविड्थ बोला जाता है. और पीक ऑफ कोर्स पीक करंट जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आएगा. तो इनका रेशियो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ω2 - ω1. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड sharpness of I mean Q factor, sharpness of resonance curve. एंड रिजल्ट वही आता है 1/√L/C. थोड़ा सा बता देता हूँ इसका भी. देखो, we choose angular frequency such that current at these frequencies is 1/√2 times of the peak current. RMS करंट हो जाएगा. और पावर एट
दिस फ्रीक्वेंसी इज हाफ ऑफ द पावर ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पावर में स्क्वायर हो जाता है करंट का, तो रूट हट जाएगा तो हाफ हो जाएगा। तो जितना पावर पीक पर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, उसका आधा पावर हो जाए वो फ्रीक्वेंसी, तो आरएमएस करंट के करस्पॉन्डिंग होती है। उन दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को एक इधर मिलेगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले, एक बाद मिलेगी बाद में, तो दैट इज डिनोटेड एज 2 डेल्टा ओमेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ओमेगा डेल्टा ओमेगा है, दोनों मिला के डिफरेंस ऑफ बोथ फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड बैंडविड्थ। एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट करंट कितना होता है, पीक करंट कितना होगा, पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू आर होता है एट रेजोनेंस। तो ये हो गया आपका रेजोनेंस पे करंट, और बाकी करंट जो बाकी फ्रीक्वेंसी पे करंट तो बोला ही है उन्होंने 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक करंट। तो वहां पर वोल्टेज ओम्स लॉ लगाएंगे, पीक वोल्टेज अपॉन जेड लिखना पड़ेगा। तो जेड का पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी पर जेड इज विल हैव ऑल दिस टर्म्स। तो जेड कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, फ्रीक्वेंसी कौन सी ले रहे हैं, ओमेगा 2 वाली फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c का होल स्क्वायर। वेयर एज, अच्छा ये जेड तो हो गया, ओमेगा 2 क्या होगा, तो ओमेगा 2 इज नथिंग बट ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ये जो उन्होंने डिफरेंस लिया है उसको डेल्टा ओमेगा। ये ओमेगा 2 की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे रख के, और फिर ये वैल्यू और आई एम की वैल्यू इधर पुट करके, वी एम कैंसिल हो जाएगा। तो जब सिंप्लीफाई करते हैं पूरा, नाउ लेंथी सिंप्लीफिकेशन है 1 पेज, व्हाट वी गेट इज 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाई एल। बैंडविड्थ जो है ये जो 2 डेल्टा ओमेगा हमें चाहिए, दैट कम्स टू बी आर बाई एल। ठीक है, now what is the ratio of quality, what is the definition of quality factor according to NCERT book? Quality factor is also defined as the ratio of the angular frequency at resonance to the bandwidth. तो angular frequency तो ओमेगा नॉट है, बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा है, जिसकी वैल्यू r बाई एल, इससे कैलकुलेट करेंगे ये फार्मूले लगा के। तो ओमेगा नॉट इज अंडर रूट ऑफ एल बाई सी 1 बाई दैट। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद वही आ जाएगा, नो अगेन नो यूनिट, बिकॉज यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो नो चेंज। दैट्स हाउ डन इन एनसीईआरटी बुक। डेरिवेशन इज जनरली अवॉइडेड, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन था, अभी तो वैसे भी नहीं आने वाला, तो यू कैन एक्सपेक्ट द न्यूमेरिकल्स ओनली। गॉट इट? तो दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड एंड डिराइव्ड। एंड रिजल्ट इज सेम, कल जो हमने किया था वही है। ओके, क्लियर टू एवरीवन? Yes. न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी वी आर डन। एक और न्यूमेरिकल है इसका, देखो ये वाला, दिस वन। Obtain the resonant frequency and Q factor of series LCR circuit, L, C and R are given. It is, तो ये आ जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 by अंडर रूट एल सी, जैसे पहला क्वेश्चन किया था। नाउ सेकंड पार्ट देखते, इट इज डिजायर्ड टू improve the sharpness of resonance of circuit by reducing full width at half maximum, मतलब बाय द फैक्टर 2। इसका मतलब ये है कि ये जो
ये बाय द ये जो है इसको इन अदर वर्ड्स क्वालिटी फैक्टर उनको इंक्रीज करना है। विड्थ से डिफाइन किया ना, क्यू फैक्टर जो है डबल करना है बाय 2। तो रेजिस्टेंस को हाफ कर दो, R by 2 कर दो, क्वालिटी फैक्टर विल बी डबल। वन वे ऑफ इंप्रूविंग, डबल करना है क्यू फैक्टर। पहले रेजिस्टेंस कितना था 7.4, मेक इट 3.7 विदाउट, अगर आपको कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करना है, बिकॉज अगर L एंड C चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो बेटर यू रिड्यूस द रेजिस्टेंस बाय हाफ, देन क्यू फैक्टर विल बी डबल, 90 हो जाएगा। पहले कितना आ रहा है क्यू फैक्टर 45 आएगा फर्स्ट केस में, नाउ इट विल बी इंक्रीजिंग by factor 2 means resistance half कर दो, that's all. That's what they wanted to know from you. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करना है तो रेजिस्टेंस को घटाओ, क्वालिटी फैक्टर विल बी इंक्रीजिंग बाय द फैक्टर 2। ठीक है, तो दिस इज द अदर क्वेश्चन ऑफ क्यू वैल्यू सिमिलर टू द previous one which we did. क्यू फैक्टर निकाला था, ओमेगा निकाला था, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला सेम। क्यू वैल्यू इट इज आल्सो कॉल्ड क्यू वैल्यू, है ना। Okay, so this is all about your Q factor. Q factor किसमें होता है? It is the case of which topic? कौन से टॉपिक का केस है ये, बोलिए। Resonance circuit. रेजोनेंट LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट के रेजोनेंस का किस लिए यूज करते हैं रेजोनेंस? हाउ डू यू यूज द रेजोनेंस? One of the purposes is tuning of radio and TV sets. All right. इवन सेल फोन में भी जिस नंबर का कॉल आते हैं वो रेजोनेंस पे होते हैं, उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, वट एवर द नंबर इज बीइंग कॉल्ड दैट विल बी रिसीव्ड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेजोनेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज पावर इन एसी सर्किट। कौन सा है? LCR सीरीज सर्किट का है। तो व्हाट वाज द एवरेज पावर इन कैपेसिटर? कितनी एवरेज पावर थी, बोलिए। कैपेसिटर में कितनी एवरेज पावर थी, डिराइव किया था हम लोगों ने? इट वाज 0। इंडक्टर में 0 थी, है ना। और रजिस्टर में डेरिवेशन जो किया था याद है, IRMS इंटू VRMS, VI, है ना। RMS के टर्म में था, कैपिटल। इनफैक्ट अगर पीक वैल्यू के टर्म में था तो नीचे 2 भी था, इफ यू कैन चेक इट। बट नाउ इट इज द केस ऑफ कंबाइंड, all three are in series, then what will be the equation now? Earlier we have seen individual, now series के लिए tell me what should be the current. In fact, suppose हमने applied voltage V is equal to Vm sin omega t apply किया, so how much will be the current flowing? Can you tell me the current flowing equation? I am sin omega t. I am sin omega t, दोनों फेज में रहेंगे क्या? Both will be in same phase, बस इतना ही रहेगा, कुछ और भी आएगा आगे? So phase difference. फेज डिफरेंस भी आएगा, 90 और लेस देन 90 और मोर देन 90। इट विल बी लेस देन 90 बिकॉज रेजिस्टेंस के साथ तो 0 होता फेज डिफरेंस करंट एंड वोल्टेज का, और इन दोनों के साथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर के साथ 90 होता है, तो उसमें बीच में कहीं सेटल हो जाएगा 90 एंड 0 के बीच में। इट कैन बी प्लस आल्सो माइनस आल्सो, तो एनसीईआरटी बुक में प्लस लिया है, तो वी आल्सो टेक प्लस, बोथ कैन बी पॉसिबल, बट
take in plus, we will also take plus. So current will be out of phase with the voltage by phi, which can be plus or minus, can be leading or lagging. अभी हमने leading लिया है ना, this plus means leading. It can be lagging also. Now tell me instantaneous power. Instantaneous power का फॉर्मूला क्या है? P is equal to VI. तो V and I की दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. P is equal to VI. V is this much, I is this much. ठीक है. तो V and I को अलग कर लिया, साइन के टर्म्स दोनों एक साथ. तो sin A sin B or 2 sin A sin B is equal to cos A minus B into cos A plus B. ठीक है. 2 को नीचे भेज दो. This 2 will be 1/2 कर दो इसको, है ना. Can we do it? Yes, we can do it. तो ये वैल्यू पुट कर दो अभी. ये साइन ए है और ये साइन बी है. तो VI/2 जो है इधर आ गया. दिस इज बिकमिंग cos A minus B. यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे शायद मैंने इनटू बोला था, माइनस है. ऑलराइट. तो दिस इज माइनस और दूसरे टर्म में प्लस है. तो ये यहाँ पे प्लस हो गया. तो यहाँ पे बचेगा cos phi एंड दिस इज cos 2 omega t plus phi. Cos phi तो कांस्टेंट है. नाउ वी आर राइटिंग एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू में राइट लाइक दिस और एवरेज इन सबस्क्रिप्ट. ये cos phi तो कांस्टेंट है, इसका एवरेज वैल्यू भी सेम रहने वाली है. टाइम डिपेंडेंट कौन सा फंक्शन है? ये वाला है. तो cos phi की एवरेज वैल्यू 0 होती है for one cycle. Just when we say the average value, it is taken as a for one cycle or for long duration. All right. This becomes 0. So we are left with these terms. ये इतने terms अपने पास रह गए. ये peak values है. और अगर हम इसको √2 दो बार लिख लें तो both will be RMS. RMS के terms में VRMS into IRMS into cos phi and peak value के term में ये है. This is very important formula. Very frequently questions are asked. So you have to remember this formula. You got it? देख लो इसको. पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी. P is equal to VI. एवरेज वैल्यूज के लिए साइन फंक्शन का एवरेज वैल्यू लिया, साइन या कॉस के. टाइम डिपेंडेंट साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन इज 0. एवरेज वैल्यू प्लस माइनस होता है उसमें. ऑलराइट. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये फार्मूला इज यू टू रिमेंबर फॉर न्यूमेरिकल्स. देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट सीखते हैं. पावर फैक्टर जो होता है हमने सीखा था पहले, cos phi होता है. तो यहाँ से देखो cos पावर के रिलेशन में cos phi आ रहा है. तो इट इज कॉल्ड पावर फैक्टर. एंड यहाँ पे देखो दिस इज एवरेज पावर और इसको वर्चुअल और RMS पावर बोलते हैं. इसको RMS इज आल्सो कॉल्ड वर्चुअल. तो V into I वर्चुअल करंट एंड वर्चुअल वोल्टेज का प्रोडक्ट है. दिस विल बी कॉल्ड virtual power or effective power. So power factor can also be
defined as ratio of average power to the virtual power, of course it will remain R by Z. It will remain R by Z, जो वहां से हमने सीखा था, तो वो फार्मूला तो रहेगा ही, बट ये फार्मूला भी हो सकता है. ठीक है. नाउ केसेस देखते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव किए थे तीनों एलिमेंट्स में. डू वी गेट दैट? यस. देखो पहले हमने क्या डिराइव किया था, इंडक्टर का. इंडक्टर में फाई कितना होगा? ओके, रेजोनेंस का देख लेते हैं पहले. एट रेजोनेंस एंड फॉर रजिस्टर फाई इज 0, कॉस फाई कितना होगा? 1. तो इट विल बी Vm into Im by 2, which is also equal to Vrms into Irms. ठीक है, √2 बना लेंगे इसको, नीचे जो 2 है. ऑलराइट. एंड सेकंड केस में, इन केस ऑफ आइडियल इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर में फाई कितना रहता है? करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री. Therefore, cos phi will become 0 and average power will be 0. जो भी पावर प्रोड्यूस होगी वो रजिस्टर में ही प्रोड्यूस होती, इनमें नहीं होती. इवन इफ दे आर इंडिपेंडेंट, 1 by 1 कनेक्टेड और इन कॉम्बिनेशन कनेक्टेड, कॉम्बिनेशन में भी यही होगा, केवल रेजिस्टेंस में ही पावर प्रोड्यूस होगी एंड दे विल बी not producing any power even if they are produced in the combination. So in case of ideal choke coil is the ideal inductor used in tube light which consumes 0 power to drop the voltage. Already done है ना, ये पॉइंट लिखा था पीछे, हमने डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी. लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो. रिलेटेड टू दिस पॉइंट. ठीक है. तो जो ऑलरेडी हम लोगों ने डेरिवेशन की है वो रिजल्ट मिल रहा है यहाँ से. इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दैट, अगर यही याद करना है तो इससे डिराइव कर सकते हैं आप. आफ्टर डिराइविंग दिस यू कैन प्रूव दैट एवरेज पावर इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ इज 0. तो ट्यूबलाइट की जो चोक कॉइल है वो वोल्टेज ड्रॉप करती है विदाउट कंज्यूमिंग एनी पावर, तो एनर्जी सेविंग होती है उसमें. इफ यू पुट द कार्बन रजिस्टर, it will also drop the extra voltage, but there will be the energy consumed according to this formula. ये वाले formulas. Now there is one term called wattless current. इसमें जो current flow होगा, suppose inductor is connected or capacitor is connected independently to AC. So average power is 0. Current hence flowing is called wattless current. Independent अगर ये, but अगर तीनों, if all the three devices are there, then how do we define the wattless current? तो उस समय एंगल, जैसे सपोज ये करंट है और इधर आपका वोल्टेज है, तो वी हैव द, सॉरी ये वोल्टेज है, वी हैव द फेज डिफरेंस बिटवीन देम. इन दैट केस सम करंट विल बी कंज्यूमिंग पावर और सम पार्ट ऑफ द करंट विल नॉट बी कंज्यूमिंग पावर. ऐसा कैसे हो सकता है? देखते हैं क्या है wattless current. When ideal inductor or capacitor is connected to AC, then no power is consumed. Already we have discussed this point. Hence current flowing consumes 0 watt power. 0 watt power. Current in this case, 0 watt power का कॉमा लगा दिए. Current in this case is called wattless current. This point already I told you. If phi is the phase difference between current and voltage, then component, अभी देखो करंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर आएगा करंट का, that will be I cos, कौन सा होगा? I cos phi हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा I sin phi. तो ये वोल्टेज के साथ 90 डिग्री है ये कंपोनेंट. तो वोल्टेज के साथ जो कंपोनेंट 90 डिग्री पर होता है, cos phi will be 0, power consumption will be 0 for that.
that component will be wattless current. So then component of current I sin phi ये वाला is perpendicular to voltage. This component is called wattless component of current. तो I sin phi वाला जो component होता है करंट का, तुमसे बोला जाए वाटलेस करंट निकालो, तो करंट निकालना पड़ेगा आरएमएस करंट है ना, ये आरएमएस करंट के साथ डील करते हैं मोस्टली हम लोग। तो आरएमएस करंट निकाल लो, फाई निकाल लो फार्मूले से, है ना, एंड उससे फिर साइन फाई मिल जाएगा। फाई कैसे निकालेंगे? कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, उससे फाई मिल जाएगा। या फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल में हमने देखा था टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर, इससे भी फाई निकल सकता है। ये दो फार्मूले आपके पास फाई निकालने के लिए, पावर फैक्टर वाला भी, टेन फाई वाला भी, जो कि हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल में सीखा था। तो वाटलेस करंट will be I sin phi. I will be the RMS current here, and sin phi. Phi is the phase difference between voltage and current. इंडक्टर में कितना होता है साइन फाई? 1 हो जाएगा, पूरा का पूरा करंट वाटलेस करंट रहेगा। कैपेसिटर में भी साइन फाई विल बी 1, उसमें भी पूरा का पूरा करंट वाटलेस करंट रहेगा। एंड रेजिस्टेंस में रेजोनेंस पर फाई कितना होगा? 0 होगा, तो 0 करंट वाटलेस करंट रहेगा। मतलब फुल करंट इज, जो भी करंट फ्लो हो रहा है सभी में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वाट फुल करंट हो जाएगा वो। ये कौन सा होगा? वाट फुल करंट। ऐसे डिफाइन नहीं करते, बट दिस इज वाटलेस। I cos phi will be what? Full current will be producing. In case of resistance, पूरा का पूरा करंट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इन केस ऑफ नॉर्मल केसेस एलसीआर सीरीज सर्किट में कुछ करंट इस तरफ होगा जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। समटाइम्स वी डोंट नीड द एनर्जी, जैसे चोक कॉइल में क्या है, हमें एनर्जी नहीं चाहिए। ट्यूबलाइट में वी हैव टू ड्रॉप द वोल्टेज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एनर्जी प्रोडक्शन। हमें हीटर में एनर्जी प्रोड्यूस करना है, ट्यूबलाइट में तो लाइट चाहिए। तो sometimes we need this current which is in the direction of voltage, sometimes we need this perpendicular component, we need more, so that voltage should be dropped and power should not be consumed. So it depends upon the requirement whether we use the energy, we need the energy consumption or we don't need it. So that's how it goes in AC. ठीक है, तो वाटलेस करंट का एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक में, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स इज मेंशन। तो बट मैंने आपको थियरी पार्ट कंप्लीट कर दिया, तो देन यू कैन डू द सॉल्ड एग्जांपल ऑफ वाटलेस करंट। नाउ वी विल डू सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग। पहले तो इसका आंसर बताइए। इफ वोल्टेज इक्वेशन इज गिवन, करंट इक्वेशन इज आल्सो गिवन, फाइंड एवरेज पावर। फार्मूला सीखा अभी हमने, पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, यू विल गेट द एवरेज पावर। देखो कौन सा फार्मूला है, IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस पाई। पीक वैल्यू के टर्म्स में डायरेक्ट पीक वैल्यू दी है, तो उसमें नीचे 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आता है कॉस पाई के साथ। तो यू कैन यूज द पीक वैल्यू आल्सो। व्हाट इज द आंसर कमिंग? क्लियर? पीक वोल्टेज इज 200, पीक करंट इज 10, डिवाइड बाय 2 cos पाई, यहाँ पे पाई दिख रहा है हमें, पाई बाय 3, दैट विल बी 1/2, है ना। तो दैट इज कमिंग 500 watt, 500 joules per second. Got it? अरे देख Yes. लो वो लाइन पर, देख लो ये दोनों पॉइंट एक साथ देख लो। वोल्टेज करंट का हो गया, देखना था उसको, एक मिनट। वी आर गोइंग डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ एवरेज पावर, वोल्टेज करंट के क्वेश्चन नहीं कर रहे हम लोग। मैंने मेथड बता दिया आपको।
Okay. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन करके बता सकते हैं क्या? देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। करंट की इक्वेशन दी है आपको, वोल्टेज की इक्वेशन दी है, फाइंड एवरेज पावर एंड नेम द एलिमेंट कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। पहले एवरेज पावर निकाल लीजिए, एवरेज पावर बोलिए, एवरेज पावर कितनी आएगी? कोई का आंसर दीजिए। ठीक है, टेक इट इन होमवर्क, इसको होमवर्क में टेक योर टाइम एंड बोथ द पार्ट्स करेक्टली बताना है। एक तो एवरेज पावर बतानी है, फिर इसमें कौन सा एलिमेंट हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, या रजिस्टर्स हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू भी हो सकता है ना? तो यू हैव टू थिंक एंड टेल मी। गॉट इट? तो नोट इट डाउन। Sir, you are not audible. Just a minute, I think we need to call sir.
Can you hear me now? Yes, sir. Okay. So could you get that question? Yeah. समझ में आया ये? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? इट इज केस ऑफ रेजोनेंस है ना? रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी निकाल लो, एफ नॉट 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। और ये कैसे निकालेंगे? सेकंड पार्ट, एवरेज पावर इज ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस पाई। रेजोनेंस में कॉस पाई कितना होता है? 1 हो जाता है। और करंट कितना होता है? ERMS, सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज ERMS है ना? करंट कितना होगा? ERMS अपॉन Z, Z इज इक्वल टू R होता है रेजोनेंस पे। ठीक है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे पॉइंट्स तुम्हें इनडायरेक्टली दिए। कैन यू सी दिस लाइक दिस? फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा ना। फ्रीक्वेंसी इन्होंने कौन सी निकाली? फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी क्या? अच्छा, व्हाट इज द एवरेज पावर? एवरेज पावर ही पूछा है ना। ठीक है, तो अदर टू डिवाइसेस आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी पावर है। वो चाहे सीरीज में होते हैं चाहे इंडिपेंडेंट कनेक्टेड होते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट कनेक्टेड तभी भी इसमें जीरो रहेगी पावर, इसमें जीरो रहेगी। ओनली जो भी पावर रहेगी रेजिस्टेंस में रहेगी। तो इट इज द केस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में करंट निकलना आसान होता है, VRMS अपॉन R, बिकॉज Z इज इक्वल टू R हो जाता है उसमें। एक्चुअल में करंट निकालने के लिए Z से डिवाइड करना पड़ता है ना, यहाँ पर Z से डिवाइड करना पड़ता है इन अदर केसेस। बट रेजोनेंस में Z becomes equal to R and cos phi is also known. Cos phi is R by Z, फिर से Z is equal to R हो गया, यहाँ पर तो 1 हो जाता है। डायरेक्ट cos phi is 1 in resonance, we know that, बट यहाँ पे मैंने R by Z वाले फार्मूले से R by R कर दिया है ना। यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दो, इसको कंफ्यूज मत करो ज्यादा। अब रेजोनेंस में cos phi is 1. Got it? 2000 watt is the answer. This is also important question because indirectly उन्होंने resonance दिया है। Are you there? Yes, Yes, sir. yes. Yes, तो this sir. मैंने mark किया important. You just remember this question. अगर रेजोनेंस नहीं होता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, Z निकालना पड़ता है। Z निकालना पड़ेगा अंडर रूट वाले फार्मूले से। यहाँ भी Z आएगा और cos phi will be R by Z, तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो in that case calculation will be lengthy, but formula used will be same. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में Z निकालना पड़ेगा शायद आपको, है ना? हाँ, तो ये सॉल्व एग्जांपल है, यू कैन गो थ्रू। इसमें cos phi इज इक्वल टू R by Z से Z का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये सब निकालने पड़ते हैं उसमें। cos phi इज R by Z एंड अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो वही पॉइंट है ना। यहाँ पर क्या था, रेजोनेंस में क्या था, Z R हो गया था, ये R हो गया था, तो ये कैंसिल हो गया, R की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी। बट इसमें इट इज नॉट द केस ऑफ रेजोनेंस, यू हैव टू find out all the values. But you may ask sir कि आपने बताया कि केवल रेजिस्टेंस में ही पावर प्रोड्यूस होती है, why can't we do this? You can do this, रेजिस्टेंस वाला फार्मूला, बट वोल्टेज नहीं पता ना उसमें। ये जो वोल्टेज है पूरा, it is applied to all the three devices in series, so we don't know how much voltage resistance is getting. अगर इसका वोल्टेज मिल जाए, things will be easy. Therefore full जो फार्मूला हमने डिराइव किया है वो यूज करेंगे, उसमें इंडिविजुअल
करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, cos phi की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, and then you can solve it. So you can see this solved example 7.8. बट जो भी पावर की वैल्यू होती है ऑल इज प्रोड्यूस्ड बाय अक्रॉस द रेजिस्टेंस. अभी भी इसमें जीरो पावर ही रहेगी, बट सिंस वोल्टेज इज नॉट गिवन हियर डायरेक्टली कैन नॉट बी फाउंड आउट. अगर हमें वोल्टेज पता लग जाता है कितना है तो दिस जस्ट वी कैन बी ब्रीफ रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा के कितना वोल्टेज मिल रहा है, करंट कितना है, या करंट को भी वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे. इसमें यू कैन डू वन थिंग, एवरेज पावर निकाल लो सर्किट का, बाद में रेजिस्टेंस का भी सेपरेट निकाल के देखो. जो आंसर आएगा, आंसर कमिंग इज 4800, तो इंडिविजुअल भी निकालेंगे तभी भी 4800 आएगा. ये होल सर्किट का है देखो, बिकॉज अदर टू आर नेवर प्रोड्यूसिंग द पावर. प्रोड्यूस मतलब ये प्रोड्यूस नहीं करते, एक्चुअल में क्या होता है, करंट जब फ्लो होता है हीट इज प्रोड्यूस इन दैट, इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस नहीं करते. जैसे ओम्स लॉ अपना जूस लॉ ऑफ हीटिंग है ना, व्हेन वी सेंड द करंट इन द रेजिस्टेंस तो energy heat produces I square RT. They are not the source of heat, but current is converting into electrical energy, converts into heat there. यहाँ पर भी electrical energy converts into heat in resistance only, not in this. That's what I mean to say. ये दूसरा सॉलिड एग्जांपल है, ये भी रेजोनेंस का ही केस है. यू कैन जस्ट प्रैक्टिस 9th क्वेश्चन. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, करंट वगैरह भी निकालना है. ओके ये क्वेश्चन देखो, एट एन एयरपोर्ट पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द doorway of metal detector for security reasons. If she or he is carrying the anything made of metal, the metal detector emits sound. On what principle does the detector work? कौन से प्रिंसिपल पर डिटेक्टर वर्क करता है? तो it works on the principle of resonance. और होगा क्या, देखो सपोज मेटल है उसकी पॉकेट में है ना, गन वगैरह है या कोई और मेटल है, तो सेल्फ इंडक्टेंस जब एक कॉइल में से डोरवे में क्या होता है, कॉइल होता है ना, सॉलिनॉइड है ये, उसके अंदर कोई मेटल गया तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस विल बी म्यू आर टाइम्स, और मेटल का म्यू आर काफी हाई होता है. तो सेल्फ इंडक्टेंस इवन इफ इट इज डायामैग्नेटिक भी है या पैरामैग्नेटिक मेटल है या फेरोमैग्नेटिक है, but it will have certain value of mu r, either more than 1 or less than 1. So in both the cases self inductance will change, therefore inductive reactance will change, therefore resonance will change. It will no longer be resonance, current will drastically drop in the resonant circuit. ये जो होता है इसका जो है ये कॉइल का रेजोनेंट सर्किट, इसके साथ आपका कैपेसिटर होगा, रेजिस्टेंस होगा और रेजोनेंस केस होगा ना. जो डोरवे का कॉइल होगा वो इंडक्टर है, दैट इज इंडक्टर, और कैपेसिटर भी होगा और इधर आपका क्या होगा, रेजिस्टर भी होगा. नाउ somebody is changing the value of L. यहाँ पे मेटल पॉकेट में मेटल है कुछ, तो L will change, self inductance will change, immediately it will be out of resonance. Alarm current will be drastically coming down, alarm will be raised. So metal detector works on the principle of resonance. Clear? क्या आंसर है, प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस. एनी डाउट? एनी डाउट बोलिए, एक डाउट होगा आपको. यस बोलिए. प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था
It also works on the principle of एडी करंट. एडी करंट पे भी वर्क करता है. So that is not in our course. एडी करंट वाला अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है. This is the answer you have to write. अगर क्वेश्चन आता है तो that's how you have to write. It works on the principle of resonance. Both दोनों पे काम करता है, but in our textbook it is given resonance वाला. So we have to write this only. हाँ, more than one option है किसी में, then you can write eddy current also. It works. Both principle it is working, but in our textbook it is given resonance. वो जो मैंने एडी करंट का बताया था, it is taken from some other book. दूसरी बुक से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो, नॉट इन एनसीईआरटी बुक. इसमें केवल यही दिया हुआ है. आर यू देयर? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Yes, sir. Tomorrow Yes, is sir. CLC oscillation. Ending here. Resonance is over. Thank you. कुछ पूछना है आप लोगों को? Okay then, thanks. Ending now.